Okay. So the next topic that we are going to see and in the reports is something called as bucket fill. Now, this is also one of the important question in the reports. Like I already have told you that there are only few questions that they could ask in the interview, and we are, during our discussion, we are also having that, what could be the questions that they could ask on this. Bucket fill is also one of the question that they could ask in the interview. That what is the meaning of bucket fill? What is the use of bucket fill? And what exactly is the bucket fill? Okay. See, the use of bucket fill or why should we create a bucket fill? तो उसके लिए मैं आपको एक example देता हूँ, and then we could understand that what exactly is the use of bucket fill. Now, for example, if we have an object called a student, for example, let's consider that we have a custom object called a student. Now, student object have few of the fields. One of the field is like name. The second field is marks. Okay. So these are the two fields inside the student object. That means if I would like to annotate, student object have two fields. One of the field is the name, and the second field is actually marks. So these are the two fields that the student object have. Now see, we created a report. Let's say that we create a tabular report on the student object. We create a tabular report. So initially, how many fields I could add on the report? It all depends कि student में कितनी fields होंगी. Like, yesterday we have seen this. इसके पहले भी हम देख ही रहे हैं कि account object पे हम काम कर रहे हैं. So all the fields that are available inside the account object, that they could only add it, they could only add it into the reports. Like if I go to reports and any of the report that we have created, for example, like we created this tabular report used to, this report. Now, how many fields this has? Account name, type, rating, industry, ownership, phone, and active. In some other in some other report, I could have a different number of the fields, different fields. For example, if I go with use case number 4, now here we have this, account ID, account name, type, rating, industry, ownership, something like that. Now, by the way, from where I'm getting all these fields? If I ask you, okay, from where I'm getting these all fields, so you will say me, sir, that these fields actually belongs to account object. You go to the account object. So account object have all these fields. Account object have all this field, and that is why you are able to add them onto the report. Now, what I'm saying is that let's say that there is an object called a student. A student object have these two. The student object have these two fields: student name and marks. But for now, let's say it doesn't have any other field. It doesn't have a field called as this result. It doesn't have a field called as result. So if I am creating a report on this object, student object, I could add maximum 2 fields, student name and the marks. तो उसके हिसाब से फिर ये रिपोर्ट बन के आपकी तैयार हो गई कि फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ रिकॉर्ड कॉल्ड एज रमेश has 78 marks, Ram Kumar has 42, Rakesh has this 61, Suman has this, Sandeep has this 42. So this is the way, this way the report has been created. But now one more thing here, I wanted based on the marks, how much the marks student has obtained, we wanted to display one more column over here. Whether the Ramesh is pass or fail, Ram Kumar is pass or fail, like this. So we have a criteria for that. If the marks is greater than or equals to 55 or something, if marks is greater than or equals to 55, let's say that student is pass, and any such mark which is below 55, we consider this to be the fail. Now, how could I add any such column? Result. I wanted to add a column called as result, but my object does not have any column called as result. So how could I could add this onto the report? Because report में तो आप वही add कर सकते हो जो कि object के अंदर है. If your account object have these all fields, ये सारी fields थी account object की. That is why I was able to add them. I see website add हो गया. कैसे add हुआ? Because this field was actually available inside the account object, and so I was able to add them. But if object does not have any such field, how could I add it? Right? How could I add? The object student does not have any such field called as result. Result नाम की कोई field ही नहीं है उसमें. So how could I add them into the report? तो ऐसा temporary field जब भी आपको add करना होता है, just on the report, whenever you wanted to add such a temporary field,
onto the report, there's a thing called as bucket. These type of temporary fields are called as bucket field. So with the help of this concept, bucket field, we are able to add some of the fields, some of the temporary fields on the report. ठीक है. Now these fields, if you go and see कि result नाम की कोई field है क्या student object में, तो आपको नहीं मिलेगी, because this field you created inside the report only. तो report में ही आपको सिर्फ नजर आएगा. तो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपसे मैं पूछूं कि व्हाट एग्जैक्टली इज द बकेट फील्ड, तो आपका आंसर होना चाहिए कि बकेट फील्ड इज अ काइंड ऑफ टेम्पररी फील्ड. बकेट फील्ड इज अ टेम्पररी फील्ड that we create onto report, and this field is only available on the report. I mean, if you create a bucket field called as this result is what? Result is a bucket field. ठीक है, कैसे क्रिएट करते हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, डोंट वरी. बट व्हाट इज अ रिजल्ट? रिजल्ट इज अ बकेट फील्ड. Result is a bucket field. ठीक है. Now, if I create this bucket field, result, this is going to be visible only on the report. उसके अलावा कहीं पर भी नहीं. If you try to find this and you go to the student object, आप student object में जाओ और वहां देखो कि ऐसा कोई field है क्या, तो you won't find it. This field we created inside the report, it is just for the display purpose. It is used to display some of the information on the temporary basis onto the report. Apart from this, apart from the report where you have created this, if you try to find this field, you won't find it. आपको कहीं नहीं मिलना ये रिपोर्ट के अलावा ये कहीं नहीं नजर आएगी. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ बकेट फील्ड. चलो अब इसको प्रैक्टिकली अपन प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल अभी स्टूडेंट ऑब्जेक्ट तो है नहीं मेरे पास, ऑफ कोर्स, तो विल गो विद द अकाउंट ऑब्जेक्ट. और हम ऐसा करते हैं कि अकाउंट में एक कस्टमर टाइप नाम का एक बकेट फील्ड क्रिएट करते हैं. और हम क्या करते हैं कि ऐसे जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड है, AR मतलब अकाउंट रिकॉर्ड, शॉर्ट फॉर्म कर दिया, सॉरी एनुअल रेवेन्यू, नॉट अकाउंट रिकॉर्ड, इट्स एनुअल रेवेन्यू. तो ऐसे जितने भी अकाउंट के रिकॉर्ड है जिसका एनुअल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू लाइक 25 लाख और समथिंग, तो उसको हम प्रीमियम कस्टमर बोलेंगे. और जिसके इसके बिलो है उसको बेसिक कस्टमर बोलेंगे. कहने का मतलब ये है कि मैं अकाउंट्स को कैटेगराइज कर रहा हूँ, एंड ऐसा जितने भी अकाउंट रिकॉर्ड है जिसका एनुअल रेवेन्यू 25 लाख के ऊपर है, उसको हम लोग प्रीमियम कस्टमर बोलेंगे, और बिलो जो है उसको बेसिक कस्टमर. मतलब मैं कस्टमर टाइप नाम का एक नया कॉलम, एक नया फील्ड जो है वो ऐड करता हूँ. कोई भी एक रिपोर्ट ले सकता हूँ. इसके लिए मैं फॉर एग्जांपल यूज केस नंबर 1 ही लेता हूँ. लेट मी गो विथ यूज केस नंबर 1. तो यूज केस नंबर 1 पे कैसे करना, कोई क्राइटेरिया नहीं लगाया था. सो लेट्स टेक दिस यूज केस. जो अपना यूज केस नंबर 1 था इसको लेते हैं. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि सारे ऑल टुगेदर 20 रिकॉर्ड्स वी आर गोइंग टू सी, है ना. इसमें से काफी सारे हैं जो एनुअल रेवेन्यू है, काफी सारे अलग अलग. तो नाउ लेट मी कस्टमाइज दिस रिपोर्ट. इसको मैं कस्टमाइज करता हूँ एंड लेट्स ऐड अ बकेट फील्ड. ठीक है. तो अभी ये फिलहाल ये सारे कॉलम्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, है ना. इसी में एक मैं बकेट फील्ड ऐड करता हूँ. तो वेयर टू ऐड बकेट फील्ड, सी इफ यू वांटेड टू सी, ये देखो, ये दिख रहा है आपको बकेट फील्ड. बकेट फील्ड वहां लिखा है ऐड बकेट फील्ड, बराबर. ये ऑप्शन आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से. सो जस्ट मेक अ डबल क्लिक. यहाँ पर आप डबल क्लिक करिए तो या ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी आ जाता है. इट्स वन एंड सेम थिंग. नाउ इट विल से कि इसका नाम क्या देना चाहते हैं. बकेट फील्ड जो है उसका नाम आप क्या देना चाहते हैं. तो इसका नाम जो है वी वांटेड टू गिव दिस एज अ कस्टमर टाइप एज अ नेम. कस्टमर टाइप, तो इसको हम कस्टमर टाइप देना चाहते हैं. ठीक है. नाउ सोर्स कॉलम, मतलब ये जो मैं बकेट फील्ड जो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, दिस आई एम क्रिएटिंग ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, अकाउंट नेम, नंबर, ओनर. तो आई एम क्रिएटिंग दिस ऑन द बेसिस ऑफ एनुअल रेवेन्यू, राइट. यहाँ पे ऐसा मेंशन है ना, इस क्राइटेरिया मेंशन नहीं कि एनुअल रेवेन्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू नेम दिस एज टू बी प्रीमियम कस्टमर, बिलो दिस वैल्यू नेम दिस एज टू बी द बेसिक कस्टमर. तो ये जो मैं यहाँ पे कैटेगराइजेशन करने वाला हूँ, दिस इज सोर्स कॉलम. मतलब ये कैटेगराइजेशन जो हो, ये कंपैरिजन जो हो, वो किसकी बेसिस पर हो. जैसे पहले मार्क्स के बेसिस पे था, ठीक है, यहाँ पे एनुअल रेवेन्यू की बेसिस पे होना चाहिए. And so I'm selecting source column as to be the annual revenue. This is the, based on what you wanted to categorize your values. So all those fields from the account object, are going to be listed out over here. So what we need to select in our case, we need to select as the annual revenue, right? Chalo. Now let me give this
greater than or equals to. Okay, if it is greater than or equals to, let me go copy this value. If it is great annual revenue, if it is greater than or equals to this, तो less than equals to का अपने आप ले लिया उसने. We will name this category of customer. I mean those annual revenue is greater than this value. Let's give them name as to be the premium customer. And then this is below this, we would like to name them as to be the basic customer. Okay. So this is what, this is the formation of bucket field. So this is the user interface, what I'm going to use, and let's save this. Now, one thing, if you observe, one column has been added, customer type. Let me run this report and identify the thing. See, one column has been added. Customer type नाम का column add हो चुका है यहाँ पे. You see, one column has been added over here. The name called as customer type. See. Now, if I ask you, क्या customer type नाम की कोई field है क्या object में? Does the account object have any such field called as customer type? The answer is no. There is no such field. Then how could you able to add this onto the report? Because we created this column as to be a bucket field. और यहाँ देख सकते हैं आप symbol भी आपको साफ-साफ नजर आ रहा है. So anyone who run this report and see the symbol, so he could understand कि customer type is basically not a field from this object. Inside the account object, there is no such field called as customer type. This is something what we are seeing just in the on the report. We are seeing this. Why? Because it's a kind of bucket field. So यहाँ पे based on the annual revenue, some of them are basic customers, some of them are premium customer. Based on that, actually it's taking the values. Based on this, it's taking the value. Some of them are basic, some of them are premium. So this is what the concept of bucket field. ये है concept bucket field का. तो बकेट फील्ड क्या है, चलिए मैं फिर से आपको समराइज करके बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, बकेट फील्ड इज वन एडिशनल फील्ड व्हाट वी कुड क्रिएट ऑन टू द रिपोर्ट, जो हम रिपोर्ट पे क्रिएट कर सकते हैं. बकेट फील्ड इज यूज्ड टू like it is used to represent certain data, and this is a temporary field which is only available on to the report. Now, if you try to find this, अगर कस्टमर टाइप नाम का आप अकाउंट में जाके सर्च करोगे, आप सोचोगे शायद मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो प्रोबेबली इनसाइड द अकाउंट ऑब्जेक्ट देयर इज अ फील्ड कॉल्ड एज कस्टमर टाइप नाम की कोई फील्ड क्रिएट हुई है. इन द कस्टम रिलेशनशिप्स सेक्शन में आप देख लो, यहाँ पे कहीं पर भी आपको कस्टमर टाइप नहीं दिख रहा है. ये जो फील्ड आपने क्रिएट किया है यहाँ पे कस्टमर टाइप नाम का, दिस इज जस्ट फॉर व्हाट, जस्ट फॉर द रिपोर्ट. ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट में क्रिएट नहीं हुआ है आपका. ठीक है. सो दिस इज द वे यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. फाइन. चलो, now let me start with the next concept. Go with all these governor limits. Go with whatever has been written, just read it at once. Let me start with the joint report. 1 second, guys. I will back in 5 minutes. एक क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड है बकेट फील्ड के ऊपर में कि I mean, apart from asking this कि what exactly is like bucket field, they could even ask you कि why to create the bucket field? I mean, what is the requirement to create the bucket field? Bucket field आखिर हम क्यों क्रिएट करें? मतलब हो सकता है वो आपसे ऐसा बोलें कि फॉर एग्जांपल इफ यू गिव दिस, कि मान के चले कि देयर इज एन ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट नाम का, जिसमें स्टूडेंट नेम और मार्क्स ही हैं. इफ आई वांटेड इफ आई वांटेड कि रिजल्ट नाम की एक फील्ड मेरे को नजर आए, मतलब व्हेनेवर आई क्रिएट एनी रिपोर्ट आई शुड आल्सो सी इंडिविजुअली कि रमेश जो है वो पास है, फेल है, राम कुमार पास है या फेल है, तो उसके लिए मैं बकेट फील्ड क्रिएट करूंगा. तो दे कुड आस्क यू, फिर वो आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा कि क्या जरूरत है आपको बकेट फील्ड क्रिएट करने की, है ना. आप चाहें तो ऑब्जेक्ट में जाके भी तो फील्ड क्रिएट कर दो. गो इन द ऑब्जेक्ट में फील्ड क्रिएट कर दो, रिपोर्ट की रिजल्ट नाम की फील्ड जो है ऑब्जेक्ट पे क्रिएट कर दो, और यू कुड डू दैट. तो आप बोल सकते हो कि यस दिस कैन ऑल्सो बी डन, ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हो सकता. लेकिन फिर एक चीज है, देखिए सिर्फ फील्ड क्रिएट करने से बात नहीं बनेगी ना. यू शुड से वन मोर थिंग, इज क्रिएटिंग जस्ट फील्ड वोंट आंसर दिस क्वेश्चन. एक्चुअली व्हाट वी नीड टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल वी क्रिएट द फील्ड कॉल्ड एज रिजल्ट. देन व्हाट इज दैट फील्ड, दिस शुड बी अ फॉर्मूला फील्ड. ये इसका जो टाइप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फॉर्मूला होना चाहिए. मतलब इफ आई गो टू द अकाउंट ऑब्जेक्ट, इफ आई ट्राई टू क्रिएट अ न्यू फील्ड, जैसे मान के चलिए यहाँ पर एक मैं रिजल्ट नाम का फील्ड क्रिएट कर रहा हूँ, तो दैट फील्ड शुड बी अ फॉर्मूला फील्ड. ये फील्ड क्या होना चाहिए, फॉर्मूला फील्ड होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद में मतलब फिर उसके बाद में फॉर्मूला जैसा भी आपको डिजाइन करना है वो आप डिजाइन करो यहाँ पे. नाउ एक तो ये है कि सिर्फ फील्ड क्रिएट करने से नहीं होगा, आप फील्ड क्रिएट करो, फॉर्मूला क्रिएट करो, फॉर्मूला बनाओ, और उसको सीधा एग्जिस्टिंग जितना भी एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर में आप जो है फॉर्मूला लगाओ.
तब जाके आपको ये फील्ड क्रिएट होगा एंड देन यू कुड ऐड दिस इनटू द रिपोर्ट। एक तो ये लेंथी प्रोसेस नजर आ रही, साफ साफ नजर आ रहा है कि ये लेंथी प्रोसेस है। उससे अच्छा हम अगर रिजल्ट को एज अ बकेट फील्ड प्रोजेक्ट करें तो वो बिल्कुल आसानी से क्रिएट हो जाता है ना, पहला। दूसरा, एक और रीजन है यहाँ पे, देखिए, अगर आपको परमिशन, मतलब अगर मैं बात करूं कि एज एन यूजर यू आर यूजिंग इन और, ठीक है, आप इस और को, आपको जो परमिशन दिया गया है, बिकॉज एवरी यूजर हैव इज गोइंग टू हैव अ परमिशन, और ये एडमिनिस्ट्रेट हमारी जो ट्रेनिंग में सबसे आखिरी में हम सीखने वाले कि व्हाट डज इट मीन्स बाय द प्रोफाइल्स। सो प्रोफाइल्स क्या होता है और प्रोफाइल्स के थ्रू कैसे हम अलग अलग यूजर को अलग अलग परमिशंस देते हैं। सो वी आर गोइंग टू लर्न दैट। तो मान के चलिए कि आपको जो परमिशंस अलॉट की गई हैं उसमें रिपोर्ट क्रिएट करने का परमिशन तो दिया गया आपको, लेकिन फॉर एग्जाम्पल आपको ये परमिशन नहीं है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट में जाके चेंजेस कर सको। दैट मीन्स यू डोंट हैव दिस परमिशन कि आप लाइक यू गो टू दिस ऑब्जेक्ट स्टूडेंट एंड क्रिएट अ फील्ड कॉल्ड एज रिजल्ट। तो अगर परमिशन लेवल पे आपको ये डिसेबल किया हुआ है तो फिर आप नहीं कर सकते। देन देयर इज ओनली वन, देयर इज ओनली वन थिंग लेफ्ट विद यू, इज दैट कि आप रिपोर्ट पे बकेट फील्ड के थ्रू इसको क्रिएट करके दिखा सकते हो। तो ये दो रीजंस हमको देने हैं। अगर हमसे पहले तो ये सवाल आया कि व्हाट एग्जैक्टली इज द बकेट फील्ड, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ क्रिएटर टू क्रिएट अ बकेट फील्ड। तब आपको सेम चीज नहीं एक्सप्लेन करना, यू नीड टू से दैट सी बकेट फील्ड, व्हाट द यूज ऑफ बकेट फील्ड इज दैट कि वी कुड डिस्प्ले एन एडिशनल, सम ऑफ द एडिशनल फील्ड्स व्हाट यू कुड क्रिएट ऑन द रिपोर्ट्स। Now, what is the requirement? Why at all? Can't we do this? Can't we create the fields directly inside the object? Why should we create the bucket fields? तो आपको बोलना है there could be two different reasons for that. पहला कि if you start creating the fields inside the object पे fields अगर create करते हो तो एक तो ये कि इट्स अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसेस। व्हाई? बिकॉज सी इट कुड बी अ फार्मूला फील्ड, हमको फार्मूला फील्ड्स बनानी पड़ेंगी, और रादर हमको फील्ड्स क्रिएट करने के बाद में हमको वर्क फ्लोज या प्रोसेस बिल्डर के थ्रू मतलब एक एक रिकॉर्ड को पकड़ पकड़ के इवेल्युएट करना है, तो उसके आधार पर देखना है कि वो पास है फेल है। अच्छा, ये भी तो हो सकता है कि आप गवर्नर लिमिट हिट कर रहे हो। देखिए आप जब हमने काफी पहले जब ये हमने स्टेटमेंट में आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ जस्ट अ सेकेंड। जब मैंने आपको फील्ड्स क्रिएशन सिखाया था तो मैंने आपको गवर्नर लिमिट भी बताई थी कि फ्री एडिशन में, फ्री इसमें आप फ्री डेवलपर अकाउंट में आप जो है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर यू कुड क्रिएट मैक्सिमम 500 कस्टम फील्ड्स, अनलिमिटेड में आप 800 कस्टम फील्ड्स क्रिएट कर सकते हो। तो अभी देखो आप जैसे आप फील्ड्स क्रिएट करोगे आप जितना, उतना आप गवर्नर लिमिट के क्लोज भी तो जा रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल वहां पे 750 फील्ड्स ऑलरेडी क्रिएटेड है मान के चलो, एंड देन यू आर क्रिएटिंग वन मोर फील्ड, स्टूडेंट के अंदर 750 फील्ड है और आप एक फील्ड और क्रिएट कर रहे हो रिजल्ट नाम का, तो आप 751 कर दिया आपने। तो आप ना धीरे धीरे गवर्नर लिमिट की तरफ बढ़ रहे हो। तो ये भी आप बोल सकते हो कि भाई हम जैसे जितनी ज्यादा फील्ड्स हम क्रिएट करेंगे तो उतनी हम गवर्नर लिमिट के नजदीक भी तो जा रहे हैं। हो सकता है हमारी वजह से सिर्फ उसको रिपोर्ट पे डिस्प्ले करना है, इसकी वजह से आप एक फील्ड क्रिएट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यू आर क्रिएटिंग अ फील्ड, क्यों क्रिएट कर रहे हो आप ये फील्ड? आपने रिजल्ट नाम की एक फील्ड बनाई, क्यों बनाई? जस्ट वांटेड टू डिस्प्ले दिस ऑन द रिपोर्ट, इसके लिए। इसके अलावा इस फील्ड का कोई काम है नहीं है। तो फिर हम जितना ज्यादा फील्ड्स क्रिएट करेंगे उतना हम गवर्नर लिमिट के नजदीक भी तो आ रहे हैं। और तीसरा, फिर ये दो रीजन हो गए, तो तीसरा रीजन ये भी तो है कि अगर हमारे पास में वो परमिशन ही नहीं है एज एन यूजर, इफ आई डोंट हैव दैट परमिशन दैट आई कुड क्रिएट द फील्ड्स इनसाइड एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाउ कुड आई डू दैट? That's a very obvious reason because permission could be different from user to user. If I don't have that permission, how could I create the field inside the result? Then in short, the only way to get the fields to onto the report is the bucket field. तो ऐसे और ऐसे दो तीन रीजंस है, देखो ये आई हैव गिवन यू सम ऑफ द वेरी कॉन्क्रीट रीजंस, और इसके बाद में फिर वो सेटिस्फाइड होना ही है उसको। ठीक है। यस, we now start with the next kind of report and that is joint report. ठीक है, चलो। सो जॉइंट क्या है? जॉइंट रिपोर्ट बेसिकली एक कैनवस पे एक से ज्यादा रिपोर्ट्स को डिस्प्ले करना। अगर आप एक कैनवस पे अभी जैसे आप एक एक रिपोर्ट बना रहे हो, इफ ऑन द सेम कैनवस इफ आई वांटेड टू join, if I wanted to club multiple reports onto the same canvas, I should go with this joint reports. ठीक है।
जॉइंट रिपोर्ट अब क्या होती, चलिए देखते हैं। जॉइंट रिपोर्ट के ऊपर पे आप उसको स्केड्यूल नहीं कर सकते हो, ये दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। अब ये देखने वाले, मैं प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूँ आपको। तो लेट्स कॉन्फ़िगर अ जॉइंट रिपोर्ट टू रिप्रेजेंट ऑल द सपोर्ट केसेस इंफॉर्मेशन, ठीक है। डिस्प्ले देम इन द वेरियस फील्ड्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको केस ऑब्जेक्ट पे लेके चलता हूँ, कुछ चीजें दिखाता हूँ केस ऑब्जेक्ट से। लेट्स सी। आई हैव क्लोज में ज्यादा केसेस है एक्चुअली। केस में केस हैव अ फील्ड कॉल्ड एज स्टेटस। केस हैव अ फील्ड कॉल्ड एज स्टेटस। स्टेटस की 4 वैल्यूज होती है ना। स्टेटस हैव 4 डिफरेंट वैल्यूज। जो स्टेटस नाम की फील्ड होती है, इसमें न्यू, एक्सकलेटेड, वर्किंग एंड क्लोज, दीज आर द 4 डिफरेंट वैल्यूज। तो अभी यहाँ पे जैसे मैं देख रहा हूँ कि क्लोज में बहुत सारी केसेस हैं, 23 क्लोज प्लेस केसेस है जो क्लोज्ड है। अगर मैं ओपन पे जाता हूँ, काफी कम है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट, मैं पहले ये डेटा को कुछ मॉडिफिकेशन करता हूँ। लेट मी ओपन randomly, I am opening some of the reports. मैं क्या करने वाला हूँ कि आई एम मेकिंग सम चेंजेस इन द स्टेटस। ये सारी क्लोज केसेस हैं, इनका जो स्टेटस है, स्टेटस कॉन्टैक्ट ओपन कर दिया यार। Okay, here I have clicked, that's why contact open हुए, ना कि केस ये है। So let me randomly open some of the cases so that I could make the changes. Now these are the cases, So all these have the status as to be the closed. I'm making some changes. Some of them उसको मैं new करता हूँ. Let me save this. अब इसका status हो गया new. Let me now close this. Details. Working. Save it and close it. Let's go to the details, and the next is like escalated. Save it and close it. So what I'm doing actually, I'm मैं data इसमें changes कर रहा हूँ ताकि मैं आपको रिपोर्ट सही तरह से बना के दिखा पाऊँ। ओके, न्यू, वर्किंग, सेव इट, क्लोज इट। डिटेल्स, लेट्स वर्किंग किया था तो एक्सकलेटेड कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, and then once again to make it new, save, close it, working, save it, close it, escalated, save it, close it, new, 7, working, save, and close. Just let me make this whole changes because we should have some of the records with the status as to be the new and then escalated as well as for the working. Then only we could identify, we could probably work in a proper way. Yeah. Okay. So now I have different types of reports. अब different types of case. तो अब मैं चलता हूँ reports के ऊपर में, and reports पे सबसे पहले let me create a new report. And because this is on the case object है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट केस देखोगे तो आपको नहीं दिखेगा।
तो आपको देखना है ये वाला फोल्डर। अब देखो यहाँ पे अकाउंट अपॉर्चुनिटी, लीड, कैंपेन, ये सब दिख रहा है, केस नहीं दिख रहा है। तो आपको केस कहाँ मिलेगा? तो आपको ये फोल्डर में जाना है, कस्टमर सपोर्ट रिपोर्ट्स, ठीक है। इसके अंदर में अगर आप इसको एक्सपैंड करते हैं तो यहाँ पे आपको केस ऑप्टेट दिखता है। तो जस्ट सिलेक्ट द केस, क्रिएट। तब यहाँ पे सारे कॉलम्स नजर आ रहे हैं, इसमें से आपको कौन सा चाहिए? केस ओनर तो नहीं चाहिए मुझे, सब्जेक्ट, ठीक है सब्जेक्ट चाहिए, टाइम ओपन भी नहीं चाहिए, इनफैक्ट ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे, नहीं ये भी हटा देता हूँ। आई जस्ट वांटेड आई दो ही चीजें मैं लगाता हूँ यहाँ पे, एक तो मुझे चाहिए केस नंबर और दूसरा मुझे चाहिए स्टेटस, ठीक है, सिर्फ ये। तो अब मैं इसको रिपोर्ट को रन करता हूँ, पहले कुछ दिखाता हूँ आपको। सी ऑल टुगेदर वी हैव 27 रिकॉर्ड्स। ये 27 रिकॉर्ड्स में, ठीक है, कुछ ऐसी केसेस हैं जिसका स्टेटस है न्यू, कुछ ऐसी केसेस हैं जिसका स्टेटस है क्लोज्ड, एंड देन देयर आर फ्यू ऑफ द केसेस जिसका स्टेटस है वर्किंग, राइट, एक्सकलेटेड आल्सो। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट मी वंस अगेन गो एंड कस्टमाइज दिस। अभी मैं इसको जॉइंट में कन्वर्ट करता हूँ। बाय डिफॉल्ट आप जानते हो, कल ही मैंने बताया कि व्हेनेवर वी क्रिएट अ रिपोर्ट, whenever we create a report, by default the type is tabular. By default the type is tabular. Let's now change this from tabular to the joint. Joint, अब मैं tabular से इसको चेंज करता हूँ, joint पे लेके जा रहा हूँ। तो पहले फिर से एक बार रन कर लो एंड सी हाउ डज इट लुक्स लाइक, ठीक है। रिपोर्ट आपकी कैसी दिखती है? तो इसमें कोई चेंजेस नहीं है सर, लेकिन एक नजर आ रहा है कि ये एक ब्लॉक बन के तैयार हो गया है। पहले ये अलग दिख रहा था, अभी थोड़ा सा देखो एक ब्लॉक दिख रहा है ये, ठीक है, दिस इज वन ऑफ द ब्लॉक। सो लेट मी वंस अगेन गो एंड कस्टमाइज दिस, फाइन। हाँ, एक चलो बाद में दिखाता हूँ। सो अब इसको मैं रीनेम कर देता हूँ, दीज आर द केसेस स्टेटस न्यू केसेस के नाम से मैं इसको नाम देता हूँ न्यू केसेस, ठीक है। ये मैंने इसको फिर से सीख लो, एक एक चीज एक एक स्टेप समझो। इट वाज लाइक इसका नाम कुछ और था पहले, अभी इस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैंने नाम दे दिया न्यू केसेस। तो वैसे अभी इस वक्त तो यहाँ पे सारी 27 रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं केसेस के। मतलब यहाँ पे स्टेटस की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ न्यू नहीं दिख रहा है हमको, क्लोज भी दिख रहा है हमको, वर्किंग भी दिख रहा है, एक्सकलेशन एक्सकलेटेड भी दिख रहा है, राइट, वी कुड सी ऑल द स्टेटस। लेकिन अब मैं क्या करूंगा, अब मैं एक फिल्टर अप्लाई करूंगा। अब ध्यान से समझो, मैं स्टेप बाय स्टेप लेके जा रहा हूँ आप सभी को। मैं एक फिल्टर अप्लाई करूंगा और उस फिल्टर के थ्रू इस पर्टिकुलर ब्लॉक, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में मैं केवल वही केसेस डिस्प्ले करने जा रहा हूं जिसका कि स्टेटस है न्यू। तो ये मैं कैसे करूंगा? फील्ड फिल्टर, जो मैंने कल आपको बताया है। कस्टमाइज करता हूं वापस से और इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए एक फिल्टर ऐड करता हूं, ठीक है, एक फिल्टर ऐड करता हूं, ऐड केस स्टेटस इक्वल्स टू न्यू, सिलेक्ट करो। तब ये जो पर्टिकुलर ब्लॉक है मेरा, यहाँ पे केवल वही केसेस दिखाइए जिसका स्टेटस है न्यू, और फॉर्मूला क्योंकि बन के तैयार है तो आप ओके करिए। सो वंस यू प्रेस दिस ओके बटन, ठीक है, वंस यू प्रेस दिस ओके बटन, अब आप इस रिपोर्ट को रन करो और देखो पहले आपको 27 रिकॉर्ड दिखे थे, नाउ यू आर सीइंग ओनली 9 रिकॉर्ड्स। 9, दीज आर द 9 केसेस हु स्टेटस इज न्यू। तो ये हो गया मेरा पहला रिपोर्ट, दिस इज माय फर्स्ट रिपोर्ट, ठीक है। अब मैं दूसरी रिपोर्ट बनाता हूँ, बिकॉज दिस इज व्हाट जॉइंट रिपोर्ट, जॉइंट में यही तो फायदा है, आप कई सारी रिपोर्ट्स को एक ही कैनवस के अंदर, इफ दिस इज योर कैनवस, सी फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज योर कैनवस, ठीक है, ये हमारा कैनवस है जिससे मैंने सबसे पहला रिपोर्ट बनाया, दिस इज माय फर्स्ट रिपोर्ट। अब ऐसे ही मैं एक और रिपोर्ट बनाऊंगा, सेकेंड रिपोर्ट, एंड देन माय थर्ड रिपोर्ट, एंड देन माय फोर्थ रिपोर्ट, आई कुड गो विद फिफ्थ, सिक्स्थ, जितना चाहे आप बना सकते हो, ठीक है। ऑन द सेम कैनवस यू कुड डिस्प्ले मल्टीपल रिपोर्ट्स, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज जॉइंट रिपोर्ट, ठीक है। तो एक रिपोर्ट बन गई है, एक और बनाते हैं, लेट्स क्रिएट वन मोर रिपोर्ट, ठीक है। तो अब यहीं पर कैनवस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, अगेन मुझे यही चाहिए, केस नंबर और स्टेटस ही लेता हूं मैं। तो केस नंबर को उठाया, यहाँ पर रख दिया, ठीक है, उसके बाद स्टेटस को उठाया, इसके ठीक बाजू में यहाँ पे लाके रख दिया।
तो एक नई रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। सी, अब ये थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए इसको ध्यान से देखो। एक और नया रिपोर्ट बन के तैयार है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ। मेक अ डबल क्लिक। आप जैसे डबल क्लिक करते हैं तो वो अपने आप जो है ओपन हो जाता है। तो वर्किंग केसेस, ठीक है। अब इसको नाम देता हूँ वर्किंग केसेस। ओके, नाउ इफ आई रन दिस रिपोर्ट, अगर मैं इस रिपोर्ट को रन करता हूँ तो पहली तो मेरे को बिल्कुल सही दिख रहा है कि यहाँ पे न्यू केसेस वाले ब्लॉक में सिर्फ वही केस नजर आ रही है जिसका स्टेटस है न्यू। वर्किंग केस मैंने बनाया है लेकिन यहाँ पे मुझे सारी फिर से पूरी 27 रिकॉर्ड्स नजर आ रहे हैं। तब मुझे इसके लिए वर्किंग केसेस के लिए भी फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट आई कुड सी ओनली दोज काइंड ऑफ केसेस हुज स्टेटस इज वर्किंग। सो लेट्स गो एंड कस्टमाइज दिस। तो अब इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है आपको ना। अब थोड़ा सा इसको नीचे ड्रॉप करता हूँ। अब देखो यहाँ आप ध्यान से देखिए, न्यू केसेस का ये ब्लॉक है। जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग, थोड़ा माइन्यूट है इसलिए बहुत ध्यान से समझो उसको। फिल्टर सेक्शन दो हिस्सों में बढ़ चुका है। दिस इज फॉर द ब्लॉक कॉल्ड एज न्यू केसेस। ये देखो आप, न्यू केसेस के लिए, न्यू केसेस के लिए ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे ही आपने एक नया रिपोर्ट बनाया, यहाँ पर एक नया एरिया कंस्ट्रक्ट हुआ है। ये देखो आप, एक नया एरिया कंस्ट्रक्ट हो गया है। एंड दिस इज फॉर व्हाट? दिस इज टू अप्लाई द फॉर्मूलाज फॉर द वर्किंग केसेस। ये नाम दिया ना आपने वर्किंग केसेस, उसके लिए ये एरिया आपके बनके तैयार हो गया है। तो वर्किंग केसेस रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम करना है, वर्किंग केसेस रिलेटेड अगर आपको कोई भी काम करना है तो आपको इस एरिया पे जाना पड़ेगा। अगर आपको न्यू केसेस पे कोई भी काम करना है तो आपको यहाँ जाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से समझो। अभी जब मैं एक और यहाँ पे एक नया और रिपोर्ट बनाने वाला हूँ, एक्सकलेटेड केसेस, तो ये इसके ठीक नीचे में यहाँ पर एक नया एरिया का क्रिएट होने वाला है एक्सकलेटेड केसेस के नाम से। मतलब एक एक नया फिल्टर सेक्शन यहाँ पे ऐड हो रहा है, वो आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। आइए देखते हैं। चलो, सो एनोटेशंस क्लियर कर देते हैं। वर्किंग केसेस पे मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? ऐड करो। फील्ड फिल्टर से डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। अगर रो लिमिट होता या क्रॉस फिल्टर होता तो मुझे क्विक लिस्ट से लेना पड़ता था, लेकिन मुझे फील्ड फिल्टर लगाना है इसलिए मैं डायरेक्ट ऐड का बटन प्रेस करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि स्टेटस की जो वैल्यू है, क्योंकि वर्किंग है इसलिए इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में आप मुझे केवल वो केसेस दिखाएं जिसका स्टेटस है वर्किंग, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो अब आप देखो, रन करो रिपोर्ट। तो ये सेकंड आपकी रिपोर्ट तैयार हो गई है और इसका नाम है वर्किंग केसेस। और यहाँ केवल वही केसेस नजर आ रही हैं जिसका स्टेटस है वर्किंग। ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं? 4। नीचे में उसका टोटल भी आता है। यहाँ कितने रिकॉर्ड्स हैं? 9। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। मुझे एक्चुअली, क्योंकि इस केस के 4 स्टेटस होते हैं, न्यू, वर्किंग, एक्सकलेटेड एंड क्लोज्ड। तो मैं और कस्टमाइज करता हूँ, एक और नई रिपोर्ट क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए मैं केस नंबर ड्रैग करता हूँ। दूसरी चीज स्टेटस। आप ज्यादा वैल्यू ले सकते हैं लेकिन कैनवस क्योंकि छोटा है इसलिए मैं इसको 2 पे रख रहा हूँ, ठीक है। और इस जो रिपोर्ट का नाम, अभी देखो यहाँ पे एक ध्यान दो, केस ब्लॉक नंबर 3 दिख रहा है। जो नाम यहाँ है वो नाम यहाँ पे दिख रहा है, केस ब्लॉक नंबर 3 दिख रहा है। अभी ध्यान से देखो, हम यहाँ पे नाम इसका चेंज करेंगे, ऊपर अपने आप चेंज हो जाएगा। लेट्स गिव द नेम एज टू बी द एक्सकलेटेड केसेस, ठीक है। एक्सकलेटेड केसेस। नाउ एज सून एज आई मैं एक्सकलेटेड करता हूँ, यहाँ देखो आप एक्सकलेटेड केसेस हो गया। यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई करना है क्योंकि यहाँ पूरी रिपोर्ट, पूरे सारे 27 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं अपने को। नो, तो यहाँ पर हम जो एक्सकलेटेड केसेस में जाते हैं, फिल्टर अप्लाई करते हैं। कौन सा फिल्टर? फील्ड फिल्टर। We wanted to see only those cases whose status equals to escalated. Insert this selection. Press the OK button. तीसरी भी रिपोर्ट बन के तैयार हो गई। एक और है, उसको करते हैं, फाइनली रन कर लेते हैं। Now let me create one more report. Case number, status, ठीक है। यहाँ पर एक और नया आपका तैयार हो गया, केस ब्लॉक नंबर 4 नाम से। Now let me rename this. Let me rename this as to be closed cases, ठीक है। क्लोज्ड केसेस। अब मैं क्लोज केसेस पे चलता हूँ और एक फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। I wanted to see only those cases whose status equals to, not equals to, equals to what? Closed. Insert your selection, press the OK button. तब आपको यहाँ पे सारी क्लोज केसेस लग रही हैं। रन दिस रिपोर्ट।
दिस इज योर जॉइंट रिपोर्ट। ये है आपका जॉइंट रिपोर्ट, जहां पे आप एक ही कैनवस पे एक से ज्यादा रिपोर्ट्स फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, दिस इज व्हाट योर जॉइंट रिपोर्ट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फ्यू मोर फैक्ट्स अबाउट दिस। फर्स्ट थिंग, कैन वी शेड्यूल दिस रिपोर्ट? नो। यहाँ रिपोर्ट आपको अगर याद हो, यहाँ छोटा सा एक पिक लिस्ट मेनू हुआ करता था, एक ड्रॉप डाउन, जिसको जब हम क्लिक करते थे तो एक रन रिपोर्ट और शेड्यूल रिपोर्ट का ऑप्शन आता था। So we don't see that option over here. Now this means your joint report cannot be scheduled. आप joint report को schedule नहीं कर सकते। ठीक है, can you export this? Export कर सकते हो? नहीं कर सकते। You have only printable view. You have only printable view. आप printable view पे जाके click कर सकते हो। You could open this printable view पे। But can I export the details? No, I cannot do that. तो मैं सिर्फ प्रिंटेबल व्यू इसका डाउनलोड कर सकता हूँ, दैट टू भी वो ऐसा दिखने वाला है। ठीक है, इस तरह से दिखने वाला है। इट्स गोइंग टू इस तरह से दिखने वाला है वो आपका। दिस इज व्हाट प्रिंटेबल। चलिए, तो एक्सपोर्ट करना डिटेल में और प्रिंटेबल व्यू में ये फर्क था जो अब आपने देख लिया है। और बाकी एक चीज और बतानी है, ऐड चार्ट का बटन डिसेबल्ड है। ठीक है, इसका मतलब आप जॉइंट रिपोर्ट पर चैट कंपोनेंट भी क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे भी मैं काफी पहले से क्लियर करते चला आ रहा हूं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, टैबुलर, समरी, जॉइंट, मैट्रिक्स। कितने टाइप्स हैं? टैबुलर, समरी, जॉइंट, मैट्रिक्स। 4 तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। आप चैट कंपोनेंट केवल समरी रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट पे क्रिएट कर सकते हो। आप किस पे नहीं कर सकते हो? You cannot create this chat component onto tabular report as well as onto joint report. देखिए, अब tabular report में तो ये बटन ही नहीं रहता है, joint report में बटन तो दिख रहा है लेकिन disabled है। That means on the tabular report as well as on the joint report, we cannot create this chat component. ठीक है, ये एक और चीज था। So guys, this was the way. Now let's move towards the final thing, and that's the matrix. Let me end this. By today I'm going to end this, and so that by tomorrow I could start with the dashboard component, or rather I could finish it by today itself. मैं आज ही finish कर देता हूँ इसको, dashboard भी खत्म करता हूँ मैं। चलिए, let me go with the matrix. What is this matrix kind of report? Summary report कल आपने बनाई थी, let's go to the summary report. Okay, let me skip this first of all. The report name is your case number 1. I wanted this report to get stored inside Skyline and save it. Now let me close this. Okay, yesterday see we created one of the, I think I have not stored that. कल मैंने समरी रिपोर्ट बनाया था, बट शायद मैंने स्टोर नहीं किया उसको, बिकॉज यहाँ मुझे दिख तो नहीं रहा है। हो सकता है कल मैं उसको स्टोर का सेव करना भूल गया हूँ शायद। नो, आई हैवंट स्टोर्ड दैट। मैंने उसको स्टोर नहीं किया है। एनीवेज, चलिए, कल आपने समरी रिपोर्ट देखा, आपने सीखा कि कैसे बनाया था हमने उसको। समरी रिपोर्ट इनिशियली हैव दिस, लेट मी ओपन एनी ऑफ द रिपोर्ट, फॉर एग्जांपल टैबुलर, एंड इफ आई वांटेड टू कस्टमाइज दिस, इसको मैं कस्टमाइज करके दिखाता हूँ कि दिस इज प्रेजेंटली अ टैबुलर रिपोर्ट। ये जो है प्रेजेंटली इट्स अ टैबुलर रिपोर्ट, लेकिन अगर मैं इसको समरी में कन्वर्ट करता हूं तो यू सी व्हाट द ऑब्जर्वेशन ड्रॉप जोन क्रिएट होता है, राइट। व्हाट वी हैव डन यस्टरडे इज लाइक कि हमने रेटिंग कॉलम के बेसिस पे उसको समराइज किया था। तो मैंने रेटिंग को यहाँ पे ड्रॉप किया। यहाँ पे एक ही ड्रॉप जोन है, एक ही ड्रॉप जोन है। इफ यू सी दैट, आपने क्या देखा अभी? आपने देखा कि यहाँ पे एक ड्रॉप जोन क्रिएट होता है, बट एक सिंगल ड्रॉप जोन क्रिएट है यहाँ पे। दिस इज जस्ट फॉर द रो। इसको रो का ड्रॉप जोन बोलते हैं। ठीक है, अभी जब मैं आपको मैट्रिक्स पे लेके जाऊंगा तो मैट्रिक्स पे आप ऑब्जर्व करेंगे 2 तरह के ड्रॉप जोन्स, रो और कॉलम के। ठीक है, रो के और कॉलम्स के। तो ये है आपका समरी रिपोर्ट। ठीक है, समरी रिपोर्ट जो है बेसिकली इस तरह से रहता है। एक एक्टिव स्टेटस को मैं ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। इफ आई रन दिस रिपोर्ट, तो अभी आप देख सकते हैं कि एक्टिव स्टेटस के आधार पर एक्टिव स्टेटस की वैल्यू ब्लैंक है, एक्टिव स्टेटस नो एंड यस, दीज आर द रिकॉर्ड। ये इस तरह से समराइज्ड हो जाता है।
तो समरी रिपोर्ट में क्या होता है कि एक ही ड्रॉप जोन क्रिएट होता है, समरी में एक ही ड्रॉप जोन क्रिएट होता है, रो का बोलते हैं उसको। चलो अब हम चलते हैं, लेट मी जस्ट क्लोज दिस। अब मैं आपको मैट्रिक्स बताता हूँ। मैट्रिक्स में बेसिकली दो ड्रॉप जोन्स क्रिएट होते हैं, रो वाइज, कॉलम वाइज। तो मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ समरी रिपोर्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैट्रिक्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ समरी रिपोर्ट. We could say that it's a advanced format of your summary. Your summary report initially have only one drop zone, बट मैट्रिक्स में दो ड्रॉप जोन्स क्रिएट होते हैं। कैसे, आओ देखते हैं। तो एक यूज केस लेते हैं कि लेट्स कॉन्फ़िगर द अपॉर्चुनिटी ऑब्जेक्ट को बेस्ड ऑन द स्टेजेस एंड द प्रोबेबिलिटी। हर अपॉर्चुनिटी की अपनी एक स्टेज होती है, अपॉर्चुनिटी की स्टेजेस होती हैं, अपॉर्चुनिटी की प्रोबेबिलिटीज होती हैं, तो उसके आधार पर हम उसको समराइज करते हैं। आओ, तो समरी जॉइंट मैट्रिक्स रिपोर्ट इज ऑल्सो समरी रिपोर्ट, लेकिन थोड़ी सी अलग होती है। आओ, सो लेट्स क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट ऑन द अपॉर्चुनिटी। तो मैं अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करता हूँ, अपॉर्चुनिटी सिलेक्ट करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे। सो व्हाट आई वांट, अपॉर्चुनिटी नेम, ठीक है, टाइप नहीं, लीड सोर्स नहीं चाहिए, अमाउंट, क्लोज, नेक्स्ट स्टेज, ये दोनों चाहिए हमको। फिस्कल पीरियड नहीं चाहिए, एज नहीं चाहिए, क्रिएटेड डेट, ओनर्स, रोल, अकाउंट नेम भी नहीं चाहिए। जस्ट आई वांटेड ओन अपॉर्चुनिटी का नाम क्या है, उसकी स्टेज क्या है, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है। अब देखिए, इनिशियली हर रिपोर्ट टैबुलर रहती है। नाउ लेट मी कन्वर्ट दिस रिपोर्ट फ्रॉम टैबुलर टू मैट्रिक्स। सबसे पहली चीज जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो, ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यहाँ दो ड्रॉप जोन्स है, एक है आपका कॉलम के लिए, एक है आपका रो के लिए, राइट। दिस इज फॉर द रोज, यहाँ लिखा ना, क्रिएट द रो ग्रुपिंग, क्रिएट द कॉलम ग्रुपिंग। तो देयर आर टू ड्रॉप जोन्स। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज दैट प्रोबेबिलिटी को मैं कॉलम्स में डाल देता हूँ, स्टेजेस को मैं यहाँ रोज पे डाल देता हूँ, ठीक है। तो अभी इनिशियली कैसा दिख रहा है, मैं इसको थोड़े बहुत चेंजेस करूंगा, डोंट वरी, ये ऐसा दिख रहा है अभी मुझे। प्रोस्पेक्टिंग रिकॉर्ड काउंट कितना है, इसको थोड़ा सा और मैं कस्टमाइज कर देता हूँ। I don't want to see the record counts, don't want to see details. डिटेल्स में क्या था बाय द वे, अच्छा ये था, ये साइड वाला जो पार्ट था, इसको मैं हटा देता हूँ। आई डोंट वांट टू सी द ड्रॉप जोन्स आल्सो, ठीक है, ठीक है। इतनी चीजें अब इसको रखता हूँ, एंड देन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रन दिस रिपोर्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, जिस इस वक्त जो रिपोर्ट आपको दिख रही है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक्स रिपोर्ट। तो यहाँ दो तरह के पार्टीशन है, प्रोस्पेक्टिंग, ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका स्टेज वैल्यू है प्रोस्पेक्टिंग, ऐसी कितनी है, 1, कितने परसेंटेज है उसका, 10%। ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका स्टेज वैल्यू है नीड एनालिसिस, ऐसे कितने रिकॉर्ड है ना, तो 1। तो उसका फिर यहाँ कितने आईडी के 4, क्लोज एंड 1 कितने हैं, 4, क्या परसेंटेज है उसका, 100% प्रोबेबिलिटी। क्लोज एंड 1 की प्रोबेबिलिटी क्या है, 100%। डिसीजन मेकिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 60%। वैल्यू प्रपोजिशन की वैल्यू क्या है, 50%। नीड एनालिसिस की वैल्यू 20%, प्रोस्पेक्टिंग की वैल्यू 10%। प्रोबेबिलिटी कि ये कस्टमर में कन्वर्ट हो पाएगा। जो क्लोज हो गया कस्टमर, क्लोज एंड 1 जिसको हमने जीत लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 100%। ऐसे कितने रिकॉर्ड है आपके पास अपॉर्चुनिटी के, 4 रिकॉर्ड है ये। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज मैट्रिक्स। अब यहाँ पर एक और चीज है, समरी रिपोर्ट की ही तरह, वो है चैट कंपोनेंट। आप यहाँ पे चैट कंपोनेंट ऐड कर सकते हो, ठीक है, आप यहाँ पे चैट कंपोनेंट ऐड कर सकते हो। सो लेट मी गो विद द फनेल चैट। अगर मैं फनेल चैट बनाना चाहता हूँ, ठीक है, तो इनेबल हूवर कर देता हूँ, शो द वैल्यूज, साइज इज स्मॉल, प्रेस द ओके बटन। नाउ सी, अब यहाँ पर एक चैट भी ऐड हो जाता है, ठीक है, लेट्स रन द रिपोर्ट। तो यहाँ पर एक चैट ऐड हो जाता है इस तरह से, लेकिन एक ही हो सकता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज व्हाट द चैट कंपोनेंट, चैट कंपोनेंट्स आर ऑलवेज क्रिएटेड ऑन द रिपोर्ट, रिपोर्ट पे बनते हैं। कौन सी रिपोर्ट, जॉइंट रिपोर्ट और सॉरी मैट्रिक्स रिपोर्ट और समरी रिपोर्ट। कितने ऐड हो सकते हैं, एक। कितनी तरह के हैं, तो 7 अलग अलग तरह के। तो आपके चैट कंपोनेंट सिर्फ 2 रिपोर्ट बनते हैं, मैट्रिक्स पे और समरी पे, ठीक है। ये है आपका मैट्रिक्स रिपोर्ट। चलो एक लास्ट टॉपिक बचा है, छोटा सा, 10 मिनट लगेगा मेरे को एक्सप्लेन करने को, और वो है डैशबोर्ड। अगर ये खत्म हो जाता है आज से, तो कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फ्रॉम टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग योर सिक्योरिटी, दैट विल बी वेरी एसेंशियल थिंग, ठीक है। चलो डैशबोर्ड समझ लेते हैं। लेट्स गो टू डैशबोर्ड फर्स्ट, इसको सेव कर लेता हूँ। दिस इज माय मैट्रिक्स रिपोर्ट यूज केस नंबर 1। लेट्स स्टोर दिस टू Skyline, save it।
लेट्स नाउ गो विद दिस बटन। अभी तक हम न्यू रिपोर्ट पे जाते थे, अब हम जाएंगे न्यू डैशबोर्ड। इसके लिए मैंने फोल्डर नहीं बनाया, तो जो डिफॉल्ट फोल्डर है मैं वही सिलेक्ट करूंगा। अब देखो ये है आपका डैशबोर्ड, ठीक है, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डैशबोर्ड, ठीक है। यहाँ पर आप ये सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स हैं। आप जानते हैं ये हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट, ठीक है। उसके बाद में लाइन चार्ट, उसके बाद पाई चार्ट, डोनट चार्ट, फनल चार्ट, स्कैटर्ड, यहाँ तक पहले से अवेलेबल था। दीज वेयर चार्ट कंपोनेंट। डैशबोर्ड में और ऐड हुए, ये 7 हो गए आपके। 8वां है आपका गेज, 9वां है आपका मैट्रिक, और उसके बाद में फिर आपका टेबल एंड विजुअल फोर्स, ठीक है। तो इस तरह से कुल मिला के यहाँ पे इट्स लाइक 9 10 11 अलग अलग तरह के डैशबोर्ड कंपोनेंट्स होते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू ऐड, पहला कंपोनेंट मैंने जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। पहला आई एडेड दिस line chart, whatever, horizontal. Second component I wanted to be add is like gauge chart, ठीक है। Third component I'm adding over here is your donut chart, ठीक है। 3 ऐड हो गए हैं, वहां पर एक ही ऐड होता था। Let me add few more components, जिसकी I wanted to add funnel chart, then probably I wanted to add this donut has been done, pie chart. Let me add this scattered or line chart over here, ठीक है। तो ये है डैशबोर्ड। ऐसे अभी डैशबोर्ड में मैंने कितने ऐड किया, आई एडेड 6। हाउ मोर आई कुड ऐड, तो अप टू दिस हैज बीन रिटन, डोंट वरी, एवरीथिंग हैज बीन रिटन। up to 20 components, up to 20 components you could add on the user interface. user interface पर आप कितने components ऐड कर सकते हो, 20। ये है डैशबोर्ड, ठीक है, ये है डैशबोर्ड। और चैट कंपोनेंट क्या होता है, जो रिपोर्ट पे क्रिएट करते हैं। कितने ऐड कर सकते हैं, 1, ओनली 1। यहाँ पे मैंने अभी 6 ऐड किया, इवन आई कुड ऐड मोर। कैसे, अगर मुझे और ऐड करना है ना, तो बस आप ये ड्रैग करके नीचे लाओ, आपको अपने आप यहाँ पे जगह बन जाती है। सी हो गया ऐसा, ऐसा। तो आप ऐसे अब मैंने 9 ऐड कर दिए, 3 इन अ रो, 3 3 9, ठीक है। तो ऐसे आप कितने ऐड कर सकते हैं, यू कुड ऐड 20 कंपोनेंट्स ऑन टू द डैशबोर्ड, ठीक है। 20 कंपोनेंट्स आप ऐड कर सकते हो। लेट इट बी, इसको रहने दो। चलो, अब ये मैंने कंपोनेंट्स तो ऐड कर दिए, लेकिन अभी इसको रन करने जाऊंगा तो रन नहीं हो गई। व्हाई, बिकॉज यहाँ पे डेटा सोर्स ही नहीं है। तो अब ये अगर ये कुछ डिस्प्ले करेगा तो क्या डिस्प्ले करेगा, ये तो कंपोनेंट्स हो गए। चार्ट को डेटा भी तो चाहिए, तो वो इसके ठीक साइड में देखो आप, ये है कंपोनेंट्स, इसके ठीक साइड में आपको टैब नजर आ रहा है डेटा सोर्सेस, ठीक है। डेटा सोर्सेस रिपोर्ट हो सकता है, विजुअल फोर्स पेज। विजुअल फोर्स पेज क्योंकि अभी मैंने बनाया नहीं है यहाँ पे, इसलिए नो रिजल्ट टू डिस्प्ले। दूसरा होता है रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स में ये हमारे 3 फोल्डर्स हैं, ठीक है। स्काईलाइन में हमने क्रिएट किया है अभी, जो जो हमने क्रिएट किया। अब नाउ सी, अभी जैसे यहाँ पर एक जो सेंटेंस में बार बार कहता था कि डैशबोर्ड पे या चार्ट कंपोनेंट पे सिर्फ जॉइंट रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट, सॉरी, सिर्फ मैट्रिक्स रिपोर्ट चल सकता है आपका, और आपका समरी रिपोर्ट चल सकता है, दूसरी कोई रिपोर्ट नहीं चल सकती, राइट। मैं काम करता हूँ, एक रिपोर्ट को पहले चेंज करता हूँ, रुको, लेट मी एक रिपोर्ट को समरी बनाता हूँ पहले। यूज केस नंबर 1, टैबुलर रिपोर्ट, यूज केस नंबर 1 को इसको मैं समरी कर लेता हूँ। तो वहां पे यहाँ पे नजर आएगा, बिकॉज हियर जॉइंट दिख रहा है, ये दिख रहा है, टैबुलर दिख रहा है। इसको एक रिपोर्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ, इसको टैबुलर से कन्वर्ट कर, रेटिंग कॉलम है यहाँ पे, टैबुलर से कन्वर्ट करता हूँ समरी पे। तो यहाँ पे ये आपका ड्रॉप जोन क्रिएट हो गया, रेटिंग को ड्रॉप कर देता हूँ यहाँ पे। रेटिंग ड्रॉप होने के बाद में अब मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने भले इसका नाम टैबुलर रिपोर्ट है, एक काम करते हैं, सेव एज कर लेते हैं। सेव दिस एज टू बी अ समरी रिपोर्ट। कहाँ सेव करना है, लेट्स सेव दिस इनटू द स्काईलाइन, सेव इट, ठीक है। चलो, ये एक रिपोर्ट बनके तैयार हो गया। लेट मी वंस अगेन रिफ्रेश दिस। कंपोनेंट्स ऐड कर रहा हूँ। पहला कंपोनेंट है मेरा माय फर्स्ट कंपोनेंट इज हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, उसके बाद में पाई चार्ट चाहिए, गेज चार्ट चाहिए। Then I want, I wanted to have funnel. I wanted to have this donut chart, line chart, ठीक है। दिस ऑल, तो ये मैंने कंपोनेंट्स ऐड कर दिए। नाउ लेट मी गो विद द डेटा सोर्सेस। तो डेटा सोर्सेस विजुअल फोर्स पेज बनाया नहीं है, इसलिए छोड़ दो। रिपोर्ट्स में चलते हैं। रिपोर्ट्स में टू द स्काईलाइन फोल्डर। नाउ आई सी समरी रिपोर्ट और मैट्रिक्स रिपोर्ट। अगर हम देखिए चैट बोर्ड, जो चैट कंपोनेंट या फिर डैशबोर्ड कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, वो केवल इन पे हो सकता है, मैट्रिक्स पे और समरी पे। अगर आप जॉइंट या टैबुलर ट्राई करते हो तो क्या होता है, देखो, जस्ट ट्राई टू ड्रैग एंड ड्रॉप इट ओवर हियर।
टेबुलर मैंने ड्रैग करने की कोशिश की है, तो ये पहले उसको एनालिसिस कर रहा है। अभी क्या बोलेगा आप देखो, यहाँ पे एरर बताएगा आपको थोड़ी देर में। इट्स जस्ट कैलकुलेटिंग। यूज केस नंबर 1 चेंज किया मैंने, यूज केस नंबर 2 देखा यहाँ पे। यूज केस नंबर टेबुलर, इसको मैंने समरी कर दिया, इसलिए ये यूज केस नंबर 1 जो है इट इज एज गुड एज समरी रिपोर्ट, तो इसको छोड़ो अभी। अभी मैंने टेबुलर रिपोर्ट यूज केस नंबर 2 ड्रैग करी यहाँ पे, तो जैसे ही मैंने ड्रैग किया तो यहाँ पे आ गया एरर, दिस रिपोर्ट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोर्स फॉर दिस कंपोनेंट इफ इट्स अ समरी। देखो आप ध्यान से देखो क्या लिखा है, इफ इट्स अ समरी या मैट्रिक्स है तो ही आप उसको ऐड कर सकते हो। अभी यूज केस नंबर 1 को मैंने अभी चेंज किया आपके आगे, ठीक है, मैंने भले एक सेव एज करा उसको, लेकिन सेव भी हो गई है। तो दिस इज नाउ टेबुलर नंबर यूज केस जो है, यूज केस 1 वो हमारी समरी रिपोर्ट है, इसलिए वो यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है, कंफ्यूजन मत रखना। तो इसका मतलब सीधा साधा है कि मैं टैबुलर रिपोर्ट तो ऐड नहीं कर सकता। आप देखो टैबुलर रिपोर्ट यूज केस नंबर 4 ट्राई करो, एरर दे रहा है, तो आप सिंपल है कि आप इसको ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, नहीं कर सकते। चलो ठीक है, ये नहीं कर सकते। क्या मैं ज्वाइंट रिपोर्ट करके देख सकता हूँ? चलो मैं ज्वाइंट रिपोर्ट ड्रैग करके देखता हूँ, एरर नहीं कर सकते आप। तो आप फिर डैशबोर्ड के लिए किसको ऐड कर सकते हो? एक तो है आपका समरी रिपोर्ट, समरी को ड्रैग एंड ड्रॉप करो, समरी रिपोर्ट ऐड होती है क्या देखो, अगर ये टाइम ले रहा है इसका मतलब ऐड हो रहा है, अगर एरर है तो तुरंत बताएगा, ठीक है। तो ये आप समरी रिपोर्ट मैंने यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करी है, तो हम देखते हैं कि क्या समरी रिपोर्ट ऐड होती है। ऑफ कोर्स समरी रिपोर्ट पे चैट कंपोनेंट क्रिएट होता है। दूसरा, क्या मैट्रिक्स रिपोर्ट ऐड होती है? आइए मैट्रिक्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करिए, तो ये आपकी मैट्रिक्स भी ऐड होती है। तो डैशबोर्ड कंपोनेंट पे सिर्फ 2 ही रिपोर्ट्स ऐड हो सकती है। एज अ डेटा सोर्स यू कुड ऐड ओनली 2 रिपोर्ट्स, एक मैट्रिक्स दूसरा समरी। तो लेट मी ऐड मैट्रिक्स ओवर हियर, समरी ओवर हियर, लेट मी ऐड मैट्रिक्स ओवर हियर, ठीक है। तो ये इस तरह से दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डैशबोर्ड। अब मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। सो लेट मी सेव, लेट सेव दिस एज टू बी द डैशबोर्ड यूज केस 1, ठीक है। और माय पर्सनल, बिकॉज मैंने कोई फोल्डर तो नहीं किया इसको, लेट मी सेव एंड रन दिस, तो ये सेव करेगा और रन करेगा, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज डैशबोर्ड यूआई, डैशबोर्ड का यूजर इंटरफेस। और यहाँ पर जैसे मैंने सिर्फ 6 कंपोनेंट ऐड किए, वी कुड मैक्सिमम ऐड 20 कंपोनेंट्स, ठीक है, 20 कंपोनेंट्स यू कुड ऐड इट ऑन टू द डैशबोर्ड यूजर इंटरफेस, दिस इज कॉल्ड एज डैशबोर्ड। अब एक चीज और होती है इसमें, यहाँ तक तो ये सीख लिया हमने, ओके फाइन, ठीक है, ये तो हमने सीख लिया। इसके लिए हम रिपोर्ट्स में जाके फिर से डैशबोर्ड पे जा सकते हैं। यहाँ पे ना यू कुड गो विद दिस माय पर्सनल डैशबोर्ड, यहाँ पर आपको ये डैशबोर्ड अवेलेबल है, राइट। यू कुड व्हेनेवर यू वांट यू कुड मेक द चेंजेस ओवर हियर। अब एक चीज और होती है इसमें, वो ये है कि एक बार जब आपका डैशबोर्ड क्रिएट हो गया है ना, वंस यू हैव क्रिएटेड दिस डैशबोर्ड्स, तो आप अपने डैशबोर्ड को होम पेज पे डिस्प्ले कर सकते हो। होम पेज मतलब क्या? होम टैब, ये होम टैब। सो इफ आई गो टू दिस होम टैब, ये चैटर है, सबसे पहला मेरे को चैटर नजर आता है, हाइड द फीड्स। चैटर के बाद में दूसरा सेक्शन है कैलेंडर, तीसरा सेक्शन है माय टास्क, ठीक है। कैलेंडर सेक्शन में क्या दिखता है? जितने भी इवेंट्स आपने क्रिएट करे। टास्क में क्या दिखता है? जितने भी टास्क। और उसके बाद में आइटम्स टू अपलोड। नाउ यू कुड डिस्प्ले दिस डैशबोर्ड, ये डैशबोर्ड को आप होम टैब पे डिस्प्ले कर सकते हो, लेकिन सारे कंपोनेंट नहीं। अगर आपने यहाँ 20 कंपोनेंट ऐड कर रहे हैं तो सारे 20 नहीं होंगे। एक्चुअली फर्स्ट 3, दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आउट ऑफ दैट फर्स्ट 3, ये पहले 3 आपके होम पेज पे आ सकते हैं। तो उसको कैसे लाते हैं वो मैं सेटिंग बता रहा हूँ, और वो लिखी हुई है, डोंट वरी, यू नो, इफ यू वांटेड दिस इज द नेविगेशन, ठीक है, दिस इज द नेविगेशन। चलो डोंट वरी, नोट्स में सब लिखा हुआ है यहाँ पे, वही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। सो गो इन द सेटअप, सेटअप में जाइए, कस्टमाइज में जाइए, होम पे जाइए, ठीक है। उसके बाद आप जाइए होम पेज कंपोनेंट्स या लेआउट, शायद लेआउट से, हाँ, होम पेज लेआउट्स। लेआउट्स में आने के बाद में ये जो डीई डिफॉल्ट दिख रहा है, डीई डिफॉल्ट का मतलब होता है डेवलपर एडिशन, डी का मतलब होता है डेवलपर एडिशन, ठीक है। अनलिमिटेड में यूएल होता है, ठीक है। एंटरप्राइज में ये ईपी होता है। तो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डीई डिफॉल्ट, तो इसको हमने एडिट करना है,
इसको हमने डी डिफॉल्ट को एडिट करना है, तो ओपन करके एडिट करो वो भी चलता है, ओपन करो और एडिट करो ये भी है, या फिर वहीं पर एडिट का बाजू में बटन था वो भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या है देखिए, अभी क्या क्या दिख रहा है, आइटम्स टू अप्रूव, अगर ये नहीं दिखाना है तुमको, फॉर एग्जाम्पल अभी क्या क्या दिख रहा है वो देखो, आप होम टैब पर आप जाते हो तो आपको चैटर दिख रहा है, ये आपका चैटर है, ठीक है, कोलैबोरेशन क्लाउड, कैलेंडर है, माई टास्क है, आइटम्स टू अप्रूव है। आपको क्या क्या दिखाना है, आइटम्स टू अप्रूव नहीं दिखाना है इसको क्रॉस कर दो, टास्क नहीं दिखाना है इसको हटा दो, ठीक है, टास्क दिखाना है क्लिक कर दो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे नजर आ रही है वो है डैशबोर्ड स्नैपशॉट, जो कि अनचेक्ड है। डैशबोर्ड का स्नैपशॉट, ये है हमारा डैशबोर्ड, इसका स्नैपशॉट मतलब पहले 3 एलिमेंट है ना, फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स, इसको आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है, इसको आप क्लिक कर दीजिए, और मैंने आइटम्स टू अप्रूव को हटा दिया हूं यहाँ से, एंड क्लिक द नेक्स्ट बटन, ठीक है। और अभी जैसे कि आपको दिख रहा है कि कैलेंडर सबसे पहले दिखेगा, टास्क उसके बाद दिखेगा, और डैशबोर्ड सबसे नीचे। आप चाहो तो डैशबोर्ड को ऊपर ला सकते हो ना, यू कुड प्रेस इट ऑन द टॉप। तो सबसे पहले आपका चैटर रहेगा, चैटर को हटा नहीं सकते यहाँ पे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आपने ऑब्जर्व करी हो, चैटर के लिए कोई सेटिंग नहीं है। आप प्रीवियस पेज पे चलो, चैटर एक डिफॉल्ट कंपोनेंट है, ये कोलैबोरेशन क्लाउड है, ये कोलैबोरेशन क्लाउड, इसको नहीं हटा सकते। यहाँ कहीं पर भी आप देख लो चैटर रिलेटेड थिंग नहीं है, राइट, चैटर नहीं रहेगा, चैटर हमेशा रहेगा। तो चैटर विल बी द फर्स्ट कंपोनेंट। सेकंड क्या चाहिए, डैशबोर्ड चाहिए, कैलेंडर चाहिए, टास्क चाहिए, तो वो आपके ऊपर है। तो मैंने डैशबोर्ड जो है उसको सबसे ऊपर किया, एंड लेट मी नाउ सेव दिस, हो गया। अब मैं वापस होम पेज पे चलता हूँ, एंड लेट मी रिफ्रेश दिस विंडो वंस अगेन, ठीक है, हाइड कर देता हूँ। नाउ सी, ये है आपका डैशबोर्ड स्नैपशॉट, दिस इज समथिंग कॉल्ड एज डैशबोर्ड स्नैपशॉट, ठीक है। तो इसके ऊपर एक इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डैशबोर्ड स्नैपशॉट, ये आंसर आपको प्रिपेयर करना है, ग्रुप में डालना है, व्हाट इज अ डैशबोर्ड स्नैपशॉट। तो वैसे तो ये अगर मैं हिंदी में बोलना चाहूँ तो डैशबोर्ड स्नैपशॉट का मतलब होता है कि डैशबोर्ड जो हमने बनाया है, दिस इज माय डैशबोर्ड, यू नो। सो द फर्स्ट थ्री कंपोनेंट्स ऑन टू द डैशबोर्ड, जो हमारे पहले 3 कंपोनेंट्स है डैशबोर्ड पे, यू नो, जो पहले 3 कंपोनेंट डैशबोर्ड पे है, ठीक है, ये फर्स्ट 3 कंपोनेंट, पहला है आपका बार चार्ट, वर्टिकल बार चार्ट, दिस इज और पाई चार्ट, ये दैट फर्स्ट 3 कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन टू द होम पेज। तो वो जिस एरिया में डिस्प्ले होते हैं, दैट एरिया इज कॉल्ड एज डैशबोर्ड स्नैपशॉट। जैसे इवेंट्स कहाँ डिस्प्ले होते हैं, इवेंट्स आर डिस्प्ले ऑन द कैलेंडर सेक्शन, टास्क आर डिस्प्लेड ऑन द टास्क माई टास्क सेक्शन, डैशबोर्ड कंपोनेंट्स आर डिस्प्लेड ऑन द डैशबोर्ड स्नैपशॉट सेक्शन, ठीक है। अब अगर आप और मान के चलो ये 3 कंपोनेंट है, नो सी, लेट मी, आप चाहते हो कि मेरे को फेनल चार्ट ऊपर लाना है फॉर एग्जाम्पल, ये ना, तो ये आप क्या कर सकते हो, आप इसको हटा दो, माइनस कर दो, इसको हटाइए, फेनल चार्ट ऊपर आया है, इसको सेव करिए, है ना, इसको सेव करो, मैं गो टू ओवर हियर, आप वहां चेंजेस करोगे तो यहाँ पर भी चेंजेस आएंगे, सी यहाँ पे फेनल चार्ट ऊपर आ गया, राइट। तो जो आपको डैशबोर्ड पे पहले 3 कंपोनेंट जिस तरह से असेंबल्ड है, इन द सेम वे यू आर गोइंग टू सी दिस ऑन टू द होम पेज। ये है आपका डैशबोर्ड स्नैपशॉट, और ये होता है डैशबोर्ड। तो डैशबोर्ड और चैट के बीच में डिफरेंस क्या है, बहुत ही बारीक डिफरेंस है, जो मैंने कल बताया। चैट रिपोर्ट्स पे क्रिएट होता है और केवल एक कंपोनेंट ऐड होता है, डैशबोर्ड भी रिपोर्ट पे क्रिएट होता है, रिपोर्ट भी, टाइप ऑफ रिपोर्ट भी सेम है दोनों पे। आप चैट खोलेंगे तो वो भी समरी और मैट्रिक्स पे क्रिएट होता है, डैशबोर्ड कंपोनेंट भी समरी और मैट्रिक्स पे क्रिएट होते हैं, जॉइंट और टैबुलर पे क्रिएट नहीं होते हैं। लेकिन डैशबोर्ड में आप 20 कंपोनेंट्स ऐड कर सकते हो, और उसके 3 कंपोनेंट जो है उसको आप यहाँ पे दिखा भी सकते हो, कहाँ पे, होम टैब पे, होम पेज पे। रिपोर्ट के साथ ऐसा नहीं हो सकता, रिपोर्ट पे केवल एक ही कंपोनेंट ऐड हो सकता है जो रिपोर्ट पे दिखाया जा सकता है, या तो टेबल के ऊपर या टेबल के नीचे। दिस इज व्हाट द रिपोर्ट में जो चैट होता है उसको बोलते हैं चैट कंपोनेंट, ठीक है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एनालिटिक्स, इतना ही पार्ट है एनालिटिक्स का। ओके, आई हैव वन असाइनमेंट, डैशबोर्ड का रिफ्रेश टाइम क्या होता है, तो ये भी निकालेंगे, और बाय टुमारो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द सिक्योरिटी फीचर, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप दिस रिकॉर्डिंग।